نہیں، آج کے اس پروگرام میں ہمارے 2-3 ایشوز ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. کچھ ٹرانسفر پر بات کریں گے کہ ماڑی میں کون خوش نصیب ایس ایس پی بننے جا رہا ہے، اور تھر میں جو ہے خود شعیب میمن کی پوسٹنگ آئی جی کی مرضی کے خلاف کیسے ہوئی. سب سے پہلے آپ یہ تصویر دیکھیں. اس تصویر کا موازنہ میں ایک اور تصویر سے کرتا ہوں. یہ تصویر جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر پر سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن بہت مشتعل ہوئے تھے، چراغ پا ہو گئے تھے، اپنے آپے سے باہر ہو گئے تھے، اور غصے میں آ کر انہوں نے انسپکٹر ریاض بھٹو کو پہلے تو معطل کیا، اور اس کے بعد بھی جب ان کا غصہ کم نہیں ہوا تو اس پر انہوں نے انہیں جبری طور پر ریٹائر کر دیا. الزام یہ لگا کہ انہوں نے پولیس کی بے توقیری کی، پولیس کی رسوائی کی، پولیس کی بے عزتی کی. اپنے پرموشن کا سٹار ایک ایسے شخص سے لگایا جو کہ معاشرے کا بہت ہی گھرا ہوا انسان ہے، یعنی کہ جرائم میں ملوث ہے، لینڈ گریبر ہے. ایک لینڈ گریبر سے جو ہے اپنے پروموشن کے سٹار لگا کر جو ہے انسپکٹر ریاض بھٹو نے جو ہے سندھ پولیس کو ایک طریقے سے گالی دی ہے، سندھ پولیس کی بدنامی کی ہے، سندھ پولیس کی رسوائی کا باعث بنے، جس کی سزا دیتے ہوئے جو ہے ریاض بھٹو کو نوکری سے نکال دیا گیا. بعد میں بڑی مشکل سے نوکری پر آئے، اور جب ایک بار ان کی پوسٹنگ ہوئی ایز اے ایس ایچ او سچل تھانے کی، تو اس پر بھی آئی جی کو اعتراض ہوا، اور آئی جی نے وہ ٹرانسفر ان کا کینسل کروا دیا کہ یہ وہی انسپکٹر ریاض بھٹو ہے جنہوں نے جو ہے ایک کرمنل سے جو ہے اپنے پروموشن کے سٹار لگائے. اب اس تصویر کا موازنہ میں اس دوسری تصویر سے کروں. یہ تصویر آپ اس وقت دیکھیں، یہ ایک اے ایس آئی ہے. یہ اپنے پروموشن کا سٹار جو ہے وہ ایک پولیس انسپکٹر یا ڈی ایس پی ہیں عنایت زرداری سے لگا رہے ہیں. عنایت زرداری اس وقت پولیس فورس میں نہیں ہے، اس وقت یہ ڈسمس ہے. ان کے خلاف بھی مقدمہ ہے قتل کا. ڈی ایس پی جو موصوف ہیں ان پر قتل کا مقدمہ ہے. یہ ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کیس میں ان کے خلاف پرچہ ہوا ہے. نہ صرف ان کے خلاف بلکہ ان کے ایس ایس پی اسد چودھری اور ان کے ڈی آئی جی جاوید جسکانی کے خلاف بھی ایف آئی آر ہوئی تھی. 7 دوسرے ایس ایچ او نیاز کوسو بھی شامل تھے. تو یہ اسی کیس میں جو ہے ڈسمس فراہم سروس ہو چکے ہیں. تو صاحب یہ آنسو آپ کے جو ہے میں سمجھ رہا ہوں، یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے عنایت صاحب کے، یہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ جو آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں ہم آپ کی آنکھوں میں آنسو. اللہ تعالیٰ آپ کو اس آنکھوں کے صدقے جو عنایت صاحب قبول فرمائے. آمین. عنایت صاحب کی دل دیکھو کیسے رو پڑے. دل تو سب کے ماشاءاللہ جھوم رہے ہیں اس وقت. عنایت صاحب کی دل دیکھو کیسے رو پڑے. دل تو سب کے ماشاءاللہ جھوم رہے ہیں. सॼी टीम जी, असांजे ऑफिसर साहिबान जी हिमत अफ़ज़ाई जो करे सॼो प्रोग्राम अरेंज कयो आहे. ॿियो असां सभिनी मुस्लमान जेको बि असां मुस्लमाननि जे अक़ीदत जेके असांजा राबतला आहे, जीअं असांजा नबी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शान में, इमाम जे शान में जेको बि गुस्ताखी कंदो उन्हनि जो अंजाम ॾियो. आपके साथ اب ان کے رول میں اور خود اس تصویر میں جو موجود تھے علی حسن بروہی کے رول میں کوئی فرق نہیں ہے. یہاں سٹار لگا رہے ہیں تو کیا قابل احترام آئی جی سندھ اس پر ایکشن لینا پسند کریں گے؟ کیا اس اے ایس آئی کو اسی طریقے سے ریاض بھٹو کی طرف سے انہیں بھی سسپینڈ کریں گے یا انہیں نوکری سے نکالیں گے؟ کیا کریں گے؟ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس طریقے سے اس تصویر پر جو ہے وہ آئی جی سندھ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے تھے، تو انہیں اس تصویر پر بھی جو ہے وہ حرکت میں آنا چاہیے، اور اس ڈی ایس پی عنایت زرداری کے خلاف بھی اسی طرح کا کارروائی کرنی چاہیے جس طرح کی کارروائی جو ہے وہ اس وقت علی حسن زرداری کے خلاف کی تھی، یعنی نفرت کا اظہار. تو اب یہ آئی جی سندھ کا امتحان ہے. لیکن اطلاع یہ ہے کہ آئی جی سندھ یہاں پر کچھ نہیں کر سکیں گے. حالانکہ خود علی حسن بروہی بھی جو ہے
बाअसर थे, उनके भी ताने बाने जो है वो बिलावल हाउस से, सीएम हाउस से होते हुए ऐवान सदर तक जाकर मिलते हैं। वो भी बाअसर थे, लेकिन उसके बावजूद आईजी ने उनकी परवाह नहीं की थी। अब यहाँ पर ये जो इनायत जरदारी है, इनके ताने बाने जो है जाकर मिलते हैं मीर मुनव्वर तालपुर से। मीर मुनव्वर तालपुर कौन है, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ताकतवर शख्सियत हैं, यानी कि पिछले 15 सालों से जो है ये इनायत जरदारी CIA मीरपुर ख़ास के करता धरता चले आ रहे हैं। यानी कि कहने को तो वो मीरपुर ख़ास CIA के इंचार्ज हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास ही वो चलाते हैं और उनके मशवरे से ही SSP की पोस्टिंग वहाँ होती है, और SSP की हालत जो है वो डमी होती है, तो गलत नहीं होगा। असद चौधरी SSP थे, 2 बार आए थे, तो वो भी डमी थे। उसके बाद इस वक्त जो मौजूदा SSP हैं डॉक्टर समीर नूर चन्ना, वो भी डमी है। सब कुछ जो है इस वक्त भी जो है ख़ुद इनायत जरदारी, हालांकि डिसमिस फ्राम सर्विस हैं, पुलिस केस में मुलविस हैं, वांटेड हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी माई के लाल में ताकत नहीं कि उसे हाथ लगाए, उसे गिरफ्तार करे। वो तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है प्रमोट होने वाले ASI को जो है वो स्टार लगा रहे हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ सिंध पुलिस के काबिल एहतराम IG को कि वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं। वो अपनी खामोशी तोड़ते हैं, अपने जावा जलाल का इजहार करते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से अली हसन बरोई वाले केस में उन्होंने एक इंस्पेक्टर रियाज भुट्टो को सस्पेंड और उसके बाद डिसमिस फ्राम सर्विस तक कर दिया था, यानी जबरी उनको रिटायर कर दिया था। तो ये जो इंस्पेक्टर हैं इनायत जरदारी, पता नहीं इंस्पेक्टर है या DSP हैं, DSP का चार्ज इनके पास, ये कहते हैं कि तकरीबन जो है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास से 3 खोखे महीने के वसूल करते हैं, और इनका दावा है कि ये तकसीम करते हैं जहां आगे जाके जो है मीर मुनव्वर तालपुर के पास, और उनके घर का किचन का ख़र्चा यही इस वक्त उठा रहे हैं। ये इनका दावा है। इनके कहते हैं कि 300 के करीब भैंसों का एक बाड़ा भी है मीरपुर ख़ास में, और ये 2010 से जो है ये मीरपुर ख़ास CIA के करता धरता हैं, और समीर नूर चन्ना भी इस वक्त उनके आगे कुछ भी नहीं है, एक डिसमिस पुलिस अफसर के सामने। तो ये अब सिंध पुलिस के IG गुलाम नबी मेमन का एक इम्तिहान है। अब दूसरी जो बात अहम मैं करने जा रहा था वो ये थी कि थर में जो है वो पोस्टिंग हो गई शोएब मेमन की। एक मेमन गया, दूसरा मेमन आया, आदल मेमन को। आदल मेमन सिंध पुलिस के IG के अपने चहीते थे, उनकी पोस्टिंग IG ने की थी वहाँ पर, और ख़ुद शोएब पहले तो उनकी पोस्टिंग होने जा रही थी मटियारी में, लेकिन वहाँ IG ने मुखालफत की, ना हो सकी। अब कहने वाले कहते हैं कि ख़ुद इनकी पोस्टिंग करवाने में जो है इनके मामू का बहुत बड़ा रोल है। इनके मामू जेलों के जो वज़ीर है अली हसन जरदारी के हाथों के छाले हैं, आंखों के तारे हैं, उनकी किसी बात को वो नहीं टालते। पहले तो ये इत्तला मिली थी कि इन्हें जो है वो DIG बनाया जा रहा है जेल में, जेल पुलिस का DIG बना रहे हैं, असलम मलिक की जगह पर इनकी पोस्टिंग हो रही थी, लेकिन कहते हैं कि फिर इन्होंने हाथ जोड़ दिए। कहा यह भी जा रहा है कि इनके और ख़ुद IG जेल जो इस वक्त हैं फ़िदा मस्तूई के आपस में कोई गहरे रिश्तेदारी इनकी आपस में हमजुल्फ बताए जाते हैं या कोई और करीबी रिश्ता है। तो दोनों के सिफारिशी एक ही हैं। इन्हीं के मामू ने उनकी पोस्टिंग कराई है IG जेल के से ख़ुद अली हसन जरदारी से, और अब अली हसन जरदारी ने ही जो है शोएब मेमन की पोस्टिंग जो है वो मट्ठी में जो है वो एज अ SSP की करवा दी इस वक्त। ये कहना है ख़ुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब तीसरी जो अहम ख़बर थी वो थी केमाड़ी टाउन में कौन नया SSP आ रहा है। बहुत सारे SSP इस वक्त ब्रीफ केस में पैसे लेके घूम रहे हैं कि हमें जो है वो केमाड़ी जैसे सोने की कान का, पहले नाम आ रहा था काशिफ अब्बासी का कि काशिफ अब्बासी SSP लग रहा है, लेकिन उनका कोर्स थोड़ा सा डिले हो गया। अब बात आ रही है खैरपुर के SSP जो है सरदार हसन खान नियाज़ी की कि वो जो है वो इस वक्त पर तोल रहे हैं ख़ुद केमाड़ी टाउन आने के लिए। ग़ुलाम मुर्तज़ा तबस्सुम भी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, यानी जो भी आएगा वो
बिलावल हाउस की पर्ची लेकर ही आएगा, यानी कि एजी मजीद ही के आशीर्वाद से किसी की भी यहाँ पोस्टिंग होने जा रही है। 2-3 जो है नाम इस वक्त मार्केट में ज़ेर गर्दिश हैं, उन्हीं में से किसी एक की पोस्टिंग यहाँ हो जाएगी। अमजद शेख की भी कोशिश की गई थी कि वो आके यहाँ का चार्ज ले, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने जो है वो हाथ जोड़ कर माजूरी ज़ाहिर कर दी, यानी उन्होंने जो है वो आने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। अब कहा यह जा रहा है कि आईजी और ख़ुद आज़ाद ख़ान की ये कोशिश है कि सिटी के एसएसपी को जो है वो केमाड़ी टाउन का एसएसपी लगा दिया जाए। डॉक्टर फ़र्रुख रज़ा की अपनी कोशिश है कि वो आ जाए यहाँ पर एसएसपी केमाड़ी की हैसियत से, और ख़ुद तारिक नवाज़ की भी अपनी कोशिश है कि वो जो है ईस्ट जोन से पीछा छुड़ाकर जो है वो केमाड़ी टाउन का एसएसपी बनने में कामयाब। तो ये एक इस वक्त बड़ा जो है वो कांटेदार मुकाबला है। देखना ये कि केमाड़ी का मार्का जो है वो कौन सर करने जा रहा है। हमारे प्रोग्रामों का मकसद किसी की दिलाजारी नहीं किसी की किरदार कुशी है। अगर हमारे इन इतलाआत पर किसी को कोई एतराज़ हो, अगर वो समझते हैं कि ये हमारी इतलाआत जो है वो हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखती है, अगर मगर और क़ियास आराइयों पर मबनी है, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हक़ाइक़ बयान कर सकते हैं। हम उनकी इतलाआत की तस्दीक के बाद उन्हें भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसी के साथ नाज़रीन चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।